Hello everyone, this is the part 5 of weather and climate and you are watching me on Skills of Learning Trisha Maheshwari, and this is the subject social science for class 5, and in this part we are gonna learn questions and answers that are short and long both. Okay, we are gonna learn short question answers also and also long. So let's get started, and before just going to that, please read this paragraph and please don't ignore it. Yeah, please read this. Just stop the video. Okay, read this. And yeah, let's go to our main topic, question and answers. So our question number 1 is write about the tropical region. So we have to write about which region, that is the tropical region, and how many regions the earth is divided into. The earth is divided into 6 main. Which region? Climatic region. Okay, so this region is found on the either side of the equator. Where is it found? It is found on the either side. जैसे कि equator है, it is here and here, the either sides. Okay, yeah. So climate is hot over the year but winters are mild. Very simple. What it is telling is जो climate है वहाँ का it's hot only, but जब winters आती है the winters are cold. Okay, they are mild. Question number 2. What do you understand by weather and climate? Differentiate between the two. So it's saying that what is weather and climate. आप weather और climate में क्या समझते हो, आपको क्या पता है weather and climate के बारे में, और वो बताने के बाद you have to just differentiate कि उन दोनों में difference क्या है. So weather is a condition of the atmosphere of a particular place at a particular time. तो weather क्या है? एक condition है atmosphere की. See the first point. Can you see this first point till here? From here to here till the full stop is there. That is the definition. What it is? It's the definition of weather. So the first point will be always the definition, and after that you will write the next point or whatever you want. The weather of a place keeps changing every day or every few days. तो next point होगा वो आप थोड़ा सा you will tell about weather. Okay, कि weather आपने बता दिया क्या होता है, अब थोड़ी सा details आप बताओगे. You can take any point. Okay, so ये हमने पढ़ लिया वेदर के बारे में. अब हम बात करें क्लाइमेट का. क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट डज नॉट चेंज एज फ्रीक्वेंटली एज वेदर डज. ये था क्लाइमेट का डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक, राइट. एंड हमने इसमें डिफरेंट भी कर दिया कि क्लाइमेट क्या है. वो वेदर जो है एक कंडीशन है एटमॉस्फेयर का, और क्लाइमेट क्या है? वो एवरेज वेदर कंडीशन है एक प्लेस का. तो यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट भी हो गया, राइट. तो अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे, एंड यू आर सीइंग पहली बार इट्स अ बिट कलरफुल. सो आई मेड इट कलरफुल बिकॉज क्वेश्चन आंसर्स लाइक अ बिट हार्ड, सो इट विल बी अट्रैक्टिव एंड यू विल बी लाइक ओके इट्स नाइस, लेट अस जस्ट learn it. Okay, it will be like that. So how does the distance from the equator affect the climate of a place? तो question क्या है कि आप जो इक्वेटर है वो कैसे अफेक्ट करता है क्लाइमेट को. That is the question. So the closer we are from the equator, the hotter it is because it receives the direct sunlight. ये मैं हर वीडियो में भी बताती हूँ, right? Because it receives the direct sunlight. Okay, this is your equator. This receives the direct sunlight. Okay, so the closer we are from the equator, the hotter it is because it receives the direct sunlight. ये मैंने हर वीडियो में भी बताया और अभी भी मैं बता रही हूँ कि जो सन की रेज है they fall directly on what? They fall directly on the equator. They fall directly on the equator. Okay, so places close to the equator, the hotter it is. Places close to the equator,
द हॉटर इट इज। कि अब जैसे जैसे यानी कि जो प्लेस है जब वो इक्वेटर के बाजू में होती है या इट इज नियर टू द इक्वेटर दैट विल बी हॉट एंड द प्लेसेस farther from the equator that will be cold. Okay, question number 4, that is a bit long question but no worries. Okay, no worries, we'll do it together. Question number 4, name the torrid zones of the heat zones of the वर्ल्ड। मैंने क्या बोला, टॉरस जोन, व्हाट। ओके, सो नेम द हीट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। पहले तो हमने नेम करने की हीट जोन्स क्या है, फिर हमें टॉरस जोन के बारे में लिखना है। ओके, टॉरस जोन के बारे में हमें लिखना है। सो लेट्स मूव टू द आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन पता चल गया है क्या करना है। पहले तो ये जो 3 जोन है उसे नेम करना है और फिर जो टॉरस जोन है उसके बारे में लिखना है। तो 3 जोन्स क्या हो गए, टॉरस जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। दीज आर द 3 जोन्स। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू। और अभी हमें बात करनी है द हॉटेस्ट जोन। हॉटेस्ट जोन, इट इज द hottest zone of the earth, right? Because it's very very close to the equator. हमने last answer में पढ़ा कि places closer to the equator the hotter it will be, right? टॉरस जोन लाइज ऑन द ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जो टॉरस जोन है उसे हम डिफाइन कर रहे हैं कि टॉरस जोन कहाँ लाए होते हैं, हम इसकी लोकेशन पढ़ रहे हैं। तो इट लाइज ऑन द ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्रीज नॉर्थ। तो 23.5 डिग्रीज नॉर्थ। ये जो कीपैड है इसमें मुझे ये डिग्रीज का साइन नहीं मिल रहा था। ओके, तो मैंने सीधे वर्ड्स में लिख दिया, राइट? ओके, that is 23.5 degrees north to the tropic of Capricorn that is 23.5 degrees south। ये क्या बोल रहा है कि कहाँ से वो है, तो जो टॉरस जोन है वो कहाँ पे लाई करता है, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में लाई करता है। ओके, दैट लाइज देयर। और अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट दैट इट इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर। तो थोड़ी सी मिस्टेक्स हो रही हैं टाइपिंग में। इट इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर एज इट रिसीव्स द डायरेक्ट हीट ऑफ द सन। तो ये क्लोजर है इक्वेटर के, और इक्वेटर क्या, इट रिसीव्स द डायरेक्ट हीट ऑन द ऑफ द सन। और ये क्लोजर नहीं, ये जो जोन है वो इक्वेटर पे उसका पूरा जो इक्वेटर पे ही बेस्ड है। बेस्ड तो नहीं, बट आई डोंट नो व्हाट टू से, बट या इट्स नियर टू द इक्वेटर, दैट विल बी फाइन। ओके, इट्स नियर टू द इक्वेटर. It receives the direct heat of the sun, that is 1 point. Then the region above and below the equator is called the north and south wait a minute, it's torrid zone. It's torrid zone, okay, not torrent, it's torrid zone respectively. अभी मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ मेरी स्क्रीन को और हम पूरा आंसर एक बार वापस से देख लेते हैं। सो ये हमें क्या होता है, हम अच्छे से पहले पूरा आंसर देख लेते हैं, हम रीड कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है इस आंसर में। ये क्या हुआ, okay, no problem. So torrid zone, temperate zone and frigid zone, these are the 3 zones. Next torrid zone lies on the either side of the equator from the tropic of Cancer, that is 23.5 degrees north to 23.5 degrees south, that is tropic of Capricorn. Oh no, what happened? Yeah, wait a minute, something sorry, but yeah, torrid zone lies on the, from where it lies, this is the equator. Okay, for example, this is the equator and the 23.5 degrees, this is north and this is south. So this region will be the tropic of हीट जोन। कौन सा हीट जोन होगा, ये टॉरिड हीट जोन होगा, टॉरिड जोन। ओके,
तो ये जो मैं कलर कर रही हूँ दैट विल बी योर जोन। ये जो मैं बता रही हूँ दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि वो कहाँ लोकेट करता है, ये सारे जोन्स कहाँ होते हैं। ओके और हम इसको करने के बाद हम थोड़ा सा रिविजन ले लेंगे। ओके इट इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर एज इट रिसीव्स द डायरेक्ट हीट ऑफ द sun. Why it is hot? It is hot because it receives the direct heat of the sun. The region above and below the equator is known as north and south frigid torrid zone respectively. Okay? ये मेरे अजीब से डायग्राम से आपको पता नहीं चला होगा। तो या आई सेड वी कैन विल टेक अ रिविज़न। तो रिविज़न में हम लोग बस पढ़ लेंगे वो कहाँ से कहाँ पे लाई करते हैं। टॉरिड जोन कहाँ से 23.5 डिग्रीज दैट इज़ कैंसर से, फ्रॉम द कैंसर टू द कैप्रिकॉन। फिर हम बात करें टेम्परेट जोन की। टेम्परेट जोन का क्या है? इट लाइज फ्रॉम द कैंसर to what? To the Arctic Circle, and from the Capricorn to the Antarctic Circle. कैंसर टू आर्टिक, कैप्रिकॉन टू एंटार्क्टिक। और इसके हम लोग जो डिग्रीज है, कैंसर का क्या है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ और आर्कटिक सर्कल का क्या है 66.5 डिग्रीज नॉर्थ। ओके ये क्या है नॉर्थ फ्रिजिड जोन हो गया। अब हम बात करें साउथ फ्रिजिड जोन की, दैट विल बी 23.5 डिग्रीज साउथ टू 66.5 डिग्रीज साउथ, दैट विल बी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड द एंटार्क्टिक सर्कल। अब हम बात करें फ्रिजिड जोन की। फ्रिजिड जोन कहाँ पे लाया करता है? फ्रिजिड जोन कहाँ पे लाई करता है? फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल, दैट विल बी द नॉर्थ फ्रिजिड जोन। फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल, दैट विल बी योर नॉर्थ फ्रिजिड जोन। और आर्कटिक सर्कल का क्या है 66.5 डिग्रीज नॉर्थ, और नॉर्थ पोल का क्या है 90 डिग्रीज नॉर्थ। ये इनके वैल्यूज़ है, मेजरमेंट है। और अगर हम बात करें साउथ का, तो फ्रॉम द एंटार्क्टिक सर्कल टू द साउथ पोल, एंटार्क्टिक सर्कल टू द साउथ पोल, एंटार्क्टिक का क्या है 66.5 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ, दैट विल बी द साउथ फ्रिजिड जोन। ओके ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अबाउट द टेम्परेट रीजन एंड द डेजर्ट रीजन। हमें किसके बारे में लिखना है? वी हैव टू राइट अबाउट द टेम्परेट रीजन एंड द डेजर्ट रीजन। तो पॉइंट्स के लिए मेरे को बुलेट्स नहीं मिल रहे थे, तो मैंने ये @ का साइन लगा दिया। ओके temperate zone lies between tropics and Arctic and Antarctic circle। तो ट्रॉपिक्स यानी कि ट्रॉपिक से आर्कटिक, कौन सा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक। वो कहाँ? टेम्परेट, सॉरी ये रीजन के बारे में ये पे रीजन होना चाहिए। ओके तो ट्रॉपिक्स, आर्कटिक्स और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में ये लाई होता है। दैट विल बी द लोकेशन। Okay that will be the location, and they winters are cold and summers are hot। तो जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे विंटर्स होती है वो कोल्ड होती है, विंटर्स आर कोल्ड एंड समर्स आर hot। They also experience 4 seasons that are summer, winter, spring and autumn। वो कौन सी सीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं? They experience 4 seasons। कौन सी? समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। ये हम इंडिया में भी एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? तो इंडिया का थोड़ा रीजन टेम्परेट जोन में आता है। ओके अब हम बात करें डेजर्ट रीजन की। डेजर्ट रीजन इज फाउंड अराउंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो थार डेजर्ट है राजस्थान में, राइट? तो हम डेजर्ट, इंडिया है वो डेजर्ट रीजन में भी आता है। ओके उसका थोड़ा पार्ट टेम्परेट में है, थोड़ा पार्ट डेजर्ट रीजन में, बिकॉज इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। और थार डेजर्ट है वो कहाँ है? राजस्थान में, दैट लाइज बिटवीन दिस रीजन के, वो डेजर्ट रीजन है, राइट? तो वो इधर ही लाई करेगा। आई मेड माई सेल्फ क्लियर।
ओके मैं वापस बता देती हूँ. इंडिया है वो कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, राइट. वो थोड़ा सा डेजर्ट रीजन में भी आता है. दैट्स इट. दे हैव वेरी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद लिटिल और नो रेनफॉल एट ऑल. तो यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो या तो थोड़ा होता है या तो बिल्कुल नहीं होता है. What is the extent of the frigid zone? What is the extent of the frigid zone? इसका आंसर कहाँ गया? Wait a minute. What is the answer? Yeah, okay. So, it extends from 66.5 degrees north to 90 degrees north and 66.5 degrees south. Okay, 66.5 degrees south. That is the south frigid zone, and 66 degrees north, 66.5 degrees north to 90 degrees north, that will be our north frigid zone. Okay, तो ये हमने पढ़ लिया फ्रिजिड जोन के बारे में, और यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस एंड होते हैं. एंड या वन मोर हैप्पी न्यूज़. व्हाट इज़ द हैप्पी न्यूज़? दैट वी हैव जस्ट completed the chapter weather and climate. Yes, we have completed it. Really, we have completed it. Hooray. Yeah, that's my real, what we say, expression. Okay, I know you can't see my face, but really I'm very happy because we have completed these chapters. Well, it was a bit long. It took 5 parts, right? This is the 5th part. So yeah, it took a bit long, but we have, like, now it's clear, right? Okay, the concept is clear, and still if you have doubt, you can just put it in the comments. And please don't forget to hit the like button and subscribe my channel, and also share my videos. Okay, so guys, that's time to say bye bye.